Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Yesterday, IBPS clerk notification came, and the number of vacancies reported are very less. But these vacancies will go up, and why these will go up? Because number of large banks have not reported the vacancy as yet. They may add these vacancies around December or January. So we have to keep in mind that the total vacancies may be around 8,000 plus minus 10%. Accordingly, we should prepare for the examination. And don't be carried away by the less number of vacancies that is being reported. I told you 3-4 months ago also that every year now number of vacancies will go down. And I told you that this year vacancies may be around 8,000 and these will be around 8,000 by the time when all banks report the vacancies. Due to COVID-19, many banks are not able to announce their vacancies well in time. So that aspect we have to keep in mind. Some people may agree to it, some people may not agree to it. It is your choice. If you feel like that you want to compete, apply. If you feel like it is not worth it, don't apply. This is your choice. When I give any information, does not mean I am telling you should apply or I am discouraging you from applying. This is your choice. Because what are the opportunities available, that is in front of everyone, and everyone has to take a call according to his or her liking. But yes, there are something which you may not be knowing. If you keep in mind those things also, you can take a better decision. That is the endeavor of this channel. Right advice at right time. But still there can be arguments. Some people may say, sir, whatever you are saying, we don't agree. You have every right to disagree. Some people will say, sir, we blindly trust you, we will agree. Always whatever you have said had ultimately happened. So they are the people, those are always benefited. Because some people may be having very little experience of banking. And that's why they are not able to read between the lines. But anyhow, by my own experience, I am telling certain things, and that ultimately proved to be right when people see it from a longer perspective of time. So another question is from where I should fill. This is a question which is asked by most of the candidates. And how I should fill the preference of banks. I always advise in clerical cadre, always try to fill from your own state. And in number of preference of banks, you should choose which bank you like the most or where the promotion avenues are good. So don't go by the reported vacancies because these vacancies are subject to change. So you can prefer Bank of Baroda, Punjab National Bank, Indian Bank, Canara Bank over other banks because they are large banks. Even Union Bank can be in the higher of your priority. Secondly, where you are located. If you are located in the northern part of the India or the central part of the India, always prefer the bank which has headquarters in these areas because concentration of branches in those areas are high. Then if you are in southern part, always prefer the bank which has headquarters in South India. Similar is the case of East. Similar is the case of West. And you know where is the headquarters. Already lot of videos are there on my channel where I have discussed the history, its headquarters. So you can go through that. I will try to provide you link in the description also about bank and their headquarters. So these are the things which you should keep in mind. Rest is your choice. Some people may like to go for the states where there are already high vacancies reported. It is your choice. But I have found that if you apply from other zone and even if you are selected there, other state, sometimes you are not comfortable when you are posted there. So it is always better in clerical cadre, always apply from your own state. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे.
कल IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, वैकेंसीज काफ़ी कम है। मैंने एक वीडियो भी डाला जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया ये वैकेंसीज क्यों बढ़ के अराउंड 8000 प्लस माइनस 10% हो जाएंगी। उसके ऊपर काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ भी आई है, काफ़ी लोग उसको एग्री भी करते हैं, काफ़ी लोग उसको डिसएग्री भी करते हैं। ये आपकी चॉइस है। मेरे जो विचार है मैंने आपके सामने रखे हैं, आप उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, क्योंकि किसी भी वीडियो के जरिए मैं आपको ये प्रेरित नहीं कर रहा कि आप बैंक के लिए अप्लाई करें या ना करें। ये आपका काम है। जो वैकेंसीज हैं आपके सामने, आपको देखना है कि मुझे बैंक के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है वैकेंसीज बहुत कम है, आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, आप उतना मार्क्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि कट ऑफ हाई होगा, तो अभी भी आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि कोई अगर ये सोचता है, कई बार मैंने देखा कमेंट्स में होता है कि IBPS फीस लेने की कोशिश कर रही है, पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। ये विचार हो सकता है किसी का, पर ये आपको उसको क्या फ़ायदा होने वाला है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और अप्लाई आप उन्हीं टर्म्स पे करोगे जो एडवर्टाइज़र ने घोषित किए। अगर मैं उससे एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, वो एक लंबी बैटल है। वो अलग से कोई भी व्यक्ति अपनी चला सकता है, कोई मुहिम भी चला सकता है कि फ़ीस कम हो ज़्यादा हो, वो अलग चीज़ है। पर अगर आज आपको ये विचार करना है कि मुझे अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो वो तो लिमिटेड डेज में ही आपको करना है। तो उस पर आप अपना खुले दिमाग से फैसला करें। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मुझे क्या लगता है वो मैंने उस वीडियो में डाला है। काफ़ी लोग हैं जो उसको नहीं मानते हैं, उनकी इच्छा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग हैं जो उसको मानते हैं, उनको हमेशा फ़ायदा भी होता है। जो पास्ट ईयर से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि जो मैं बताता हूँ उसका अंततः फ़ायदा होता है। और इसी कारण आज हमारे चैनल पर 11,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको बैंकिंग, इंश्योरेंस या अदर सेक्टर्स में नौकरी मिल चुकी है, और उनको इन बातों से कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। ये आपके ऊपर है, क्योंकि कई नए लोग होते हैं, हो सकता है उनको ना भी ये बातें अच्छी लगे, तो आपके ऊपर है। पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि सर प्रेफरेंस ऑफ बैंक क्या होनी चाहिए, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर कौन से स्टेट से मैं अप्लाई करूं, तो मेरा मानना हमेशा ये है कि आज चाहे वहाँ रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं या नहीं है, आपको हमेशा अपने स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली जॉब मिलने के बाद आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो हमेशा फ़ायदा अपने स्टेट से ही रहता है। मगर अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसी तरीके से कौन सा बैंक मुझे चुनना चाहिए, बैंक आपको हमेशा वो चुनना चाहिए जिन बैंकों का हेडक्वार्टर आपके एरिया में। जैसे आप नॉर्थ इंडिया से हैं या सेंट्रल इंडिया से हैं, तो उन बैंकों का चुनाव करिए जिनका हेडक्वार्टर नॉर्थ में है। वहाँ ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, वहाँ आपके घर के पास पोस्टिंग होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे ही अगर आप साउथ को बिलोंग करते हैं, तो साउथ में जिन बैंकों के हेडक्वार्टर है उनको आप ऊपर प्रेफरेंस में ला सकते हैं। इसी तरह ईस्ट वाले ईस्ट को, वेस्ट वाले वेस्ट को। दूसरा तरीका हो सकता है कि बड़े बैंकों को आप ऊपर ले लें, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, ये बड़े बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया भी इस ऑर्डर में ऊपर आ सकता है। तो ये आप अपने हिसाब से चुनिए उसको, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा तरीका नहीं हो सकता जो सबके लिए सूट करेगा। तो अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप फॉर्म भरिए। वैकेंसीज आपके सामने है, पर मेरा मानना बड़ा ही स्पष्ट है कि क्योंकि लार्ज बैंक्स ने अभी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं और ये वैकेंसीज वो दिसंबर जनवरी तक रिपोर्ट करेंगे, तो 8,000 प्लस माइनस 10% अल्टीमेट वैकेंसीज होंगी। काफ़ी लोग इस पे आर्गूमेंट कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं सर 1,500 है, मैक्सिमम 2.5 हो जाएंगी, वो आपका सोचना है। पर जो बड़े बैंक है, जब उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं की है, तो आंकड़ा क्या होगा ये आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं। एक पंजाब नेशनल बैंक के लिए 2,000 वैकेंसी कोई मायने नहीं रखती है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 2,000 वैकेंसी मायने नहीं रखती, 1,000 वैकेंसीज केनरा बैंक, इंडियन बैंक के लिए मायने नहीं रखता। तो यदि ये 4 बैंक अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर देते हैं, आराम से ये 6,000 वैकेंसी आपकी ऐड हो जाती हैं, 6,000 से अधिक ऐड हो जाती है। पास्ट ट्रेंड आप देख लीजिए, इन बैंकों ने हर साल ली है और अभी भी लेंगे, क्योंकि ये बड़े बैंक है, बिना क्लरिकल स्टाफ लिए इनका गुजारा नहीं हो सकता।
अगर उसमें रिटायरमेंट हो रही है और हजारों की तादाद में लोग रिटायर हो रहे हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी वो कर रहे हैं क्लर्क से ऑफिसर, तो क्लर्क तो उनको चाहिएंगे ही। अभी नहीं रिपोर्ट कर पा रहे हैं, वो सबके सामने है कारण। कोविड है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, काफ़ी और फैक्टर्स भी इस साल है, तो वो कारण है। पर ये नहीं है कि अल्टीमेट वैकेंसीज नहीं होगी। पर इसको आपको ये नहीं मानना कि अगर मैंने कह दिया 8,000 वैकेंसीज होंगी, 1,500 वैकेंसीज होगी, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि शायद कोई आपको प्रेरित कर रहा है बैंकिंग में ज्वाइन करने के लिए या अप्लाई करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे पीओ में बहुत कम वैकेंसीज थी, फिर भी 7 लाख से ऊपर फॉर्म है। लोग अप्लाई करेंगे ही, क्योंकि अगर कहीं पर 10 वैकेंसीज हैं वहाँ भी लोग अप्लाई करते हैं, ये तो फिर भी 1500 है। जो स्थिति है आपके सामने है, डिसीजन आपने लेना है। चैनल का काम है राइट एडवाइस एट राइट टाइम। जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो बताना इस चैनल का उद्देश्य है। उस पर विश्वास कर लेना ना कर लेना आपका काम है। कोई आपको ज़बरदस्ती विश्वास कराने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये हमेशा आप ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।